Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start next topic of unit 3rd, which is conversion of galvanometer into an ammeter and an voltmeter. So इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ galvanometer ਨੂੰ ammeter ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ galvanometer ਨੂੰ ਅਸੀਂ voltmeter ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So this is an important topic. ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੱਚੇ ਇਹ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. So let's start with the definition of ammeter. सब तो पहले तो थोड़ा ammeter पता होना चाहिए कि ammeter की चीज़ आ. It is an instrument used to measure current in an electric circuit. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Is it clear? A galvanometer is a low resistance instrument. एक galvanometer जो है वो low resistance instrument है. It gives full deflection. Deflection means जिदा ही ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट पास ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਜੋ galvanometer ਦੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹਿੱਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. So full deflection मतलब ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ galvanometer ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ galvanometer ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ galvanometer ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਏਗੀ. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ. ठीक है, so this is the position 0, this is 10 30 कुछ भी हो सकता है. So this is a full scale deflection. जो मैक्सिमम ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. when a small current is passed through it, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. so it is not used to measure current in the circuit. it can be damaged because ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਪੜੋ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਜਰ ਕਰੰਟ. ਜੋ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ? ਵੈਨ ਅ ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਆਈ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਇਟ rotates the coil of the galvanometer through a large angle. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ large current ਬੱਚੇ galvanometer ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆਏਗਾ ਤਾਂ galvanometer ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ. ਸੋ galvanometer ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਕਰੰਟ ਦੇ ਲਈ galvanometer ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਰਜ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. the pointer of the galvanometer in an attempt to go out of the scale may break. ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਚਲੇਗੀ ਬਟ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ galvanometer ਦਾ ਆਪਰੇਟਰਸ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ. when large I is passed, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ the large amount of heat is produced in the galvanometer. ਤਾਂ galvanometer ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. excessive heat may damage the galvanometer. ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ galvanometer ਆ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਆ, this is just for your knowledge. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਮੀਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸੋ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਅਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਅੰਪੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. what is the meaning of a? A means a meter? No, it's not a meter, it's ampere. ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ what is the meaning of A, ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 90% ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ A means a meter. this is not a meter, this is the unit of current. ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੰਪੇਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਅੰਪੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ MA ਮਤਲਬ ਮਿਲੀ ਅੰਪੇਅਰ, this is ਮਾਈਕਰੋ ਅੰਪੇਅਰ. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ. ਸੋ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਯੂਨਿਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਲਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ.
दिस इज़ द मेन आर्टिकल जितों तुसीं अपनी नोटबुक के उपर लिखना आ। बाकी पिछे वाला पेज जस्ट नॉलेज सी, उहदे विचों अगर तुसीं एमीटर की डेफिनेशन भी नहीं लिखोगे तो चलेगा। इत्थों तुहानूं हर एक चीज़ लिखनी पएगी। टू कन्वर्ट अ गलवैनोमीटर इनटू एन अमीटर। मान लो तुहाडी लैब के अंदर साडे कोल सिर्फ गलवैनोमीटर आ, ना तो साडे कोल अमीटर आ, ना ही साडे कोल वोल्टमीटर आ। सो असीं गलवैनोमीटर की हैल्प दे नाल असीं ओनू अमीटर दे विच कन्वर्ट करना किस तरीके नाल कर सकते हैं। सब तो पहला चीज़ लिख दो तुहाडे तो की चीज़ साडे कोल अवेलेबल आ। नंबर 1 इज़ अ करंट। कैपिटल आई इज़ अ टोटल करंट इन द सर्किट। करंट तो साडे कोल होएगा, स्विच लग्या होया, जिद्दां ही तुसीं वायर दे नाल लगाओगे तो वायर दे विच कोई ना कोई करंट आई आ जाएगा, इसदा मतलब करंट आई है साडे कोल। सैकेंड वन साडी लैब विच की अवेलेबल आ साडे कोल, रेजिस्टेंस ऑफ गलवैनोमीटर। अगर तुहाडे कोल तुहाडी लैब दे अंदर गलवैनोमीटर पिया आ, ठीक है, वो गलवैनोमीटर दी रेजिस्टेंस असीं लिख दित्ती कि कैपिटल जी आ। एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट। बच्चे एक छोटा जिहा रेजिस्टेंस बॉक्स हुंदा आ जिहनूं असीं शंट रेजिस्टेंस बोल दिंदे आ। ठीक है जी, मैं नैक्सट तुहानूं शो भी कर दिंदी आ कि शंट रेजिस्टेंस की चीज़ हुंदी आ। सो पहला इन्नी चीज़ समझ लो, शंट है कि है इट इज़ लो रेजिस्टेंस कनैक्टिंग पैरेलल टू द गलवैनोमीटर और अमीटर। एक इदां दा रेजिस्टेंस बॉक्स हुणे तुहानूं दिखा दिता जाएगा। लो रेजिस्टेंस एक बॉक्स हुंदा बच्चे, उहनूं असीं पैरेलल कनैक्ट कर दिता गलवैनोमीटर दे नाल। ठीक है, जिद्दां ही गलवैनोमीटर दे नाल असीं इहनूं पैरेलल कनैक्ट करदे हां तो एक्ट करेगा एज एन अमीटर की तरह। ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट के अक्रॉस जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्ना ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉयल होएगी। ठीक है, सो इनू समझण दे लई असीं की कीता, सब तो पहला असीं एक गलवैनोमीटर ले लिया। आ रहा तुहाडा गलवैनोमीटर इस तरीके नाल, एक असीं गलवैनोमीटर ले लिया, एक असीं लो रेजिस्टेंस डिवाइस ले लिया विच इज शंट नूं असीं की कीता पैरेलल जोड़ दिता इस तरीके नाल। ठीक है जी, इहदे उपर नाम रख दिता एस। सो गलवैनोमीटर और शंट नूं असीं पैरेलल जोड़ दिता। जदों इहनूं पैरेलल जोड़ांगे तां आ पूरे पोर्शन नूं, इन्ने क पोर्शन नूं असीं की बोल दिंदे आ अमीटर। दिस इज एक्ट एज एन अमीटर। बच्चे डायग्राम क्लीयर होगी। ठीक है, डायग्राम च कुछ भी नहीं है, गलवैनोमीटर और शंट नूं दोनों नूं पैरेलल जोड़ता। हुण ध्यान नाल समझो करंट कितना आया। जिद्दां ही असीं इहनूं बैटरी दे नाल कनैक्ट कीता, इहदे विचों करंट कितना आ रहा, आई करंट। इस पॉइंट ते जाके यह दो पार्ट्स दे विच डिवाइड हो रहा, अद्धा करंट इधर चला गया, अद्धा करंट ऊपर चला गया। जिहड़ा गलवैनोमीटर दे विचों करंट जा रहा, लेट अस सपोज दैट इज आई जी, आई दे पैर विच जी पा दो। ठीक है जी, इसदा मतलब ऊपर कितना करंट बच गया, ऊपर जिहड़ा करंट बचिया दैट इज आई माइनस आई जी। आई विचों आई जी माइनस कर दो तो बाकी करंट जो भी बचेगा वो ऊपर वाली साइड ते चला गया, आई माइनस आई जी। बच्चे गल क्लीयर होगी कि किस तरीके नाल तुहाडे करंट डिवाइड होए। जिहड़ा आई जी करंट इधर गया उही शंट विचों पास हुंदा होया इधर नूं आ गया। सो दिस इज आई माइनस आई जी। डन। हुण आही करंट जिहड़ा आई जी सी यही एस विचों पास होया। ठीक है, यही एस विचों पास होके इधर नूं चला गया आई जी। ठीक है, हुण जदों इत्थे इकट्ठा होएगा, सो दिस इज आई प्लस माइनस आई जी प्लस आई जी। इनू और इनू ऐड कर दिता, आई जी ना आई जी कैंसिल हो गया, फाइनली साडे को की बच गया आई। सो कल्ला की रह गया आई। बच्चे इन्नी चीज क्लीयर होगी तुहानू सबनू। ठीक है जी, सो इन्नी एक डायग्राम आ जो बेसिकली नीचे भी बनी हुई है। सो तुहानू प्रॉपर वे ना बना के दिखा देती कि किस तरीके ना करंट एक पासे तो दूसरी साइड दे विच जांदा आ। ठीक है, सो नैक्सट देखो, हुण कहंदे एदा पोटेंशियल डिफरेंस किहदे इक्वल हो जाएगा, जी दे पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस किहदे इक्वल हुंदा है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल बेसिकली किहदे इक्वल हुंदा है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किहदे इक्वल हुंदा, आई आर। सो शंट दा रेजिस्टेंस कितना होएगा, आई दी जगह ते असीं किहड़ा करंट यूज करांगे, आई माइनस आई जी। रेजिस्टेंस आर की जगह ते असीं इत्थे किहड़ा रेजिस्टेंस यूज किया, एस। सो लिख दिता एस। क्लीयर हो गया बच्चे, आ कित्थों आया आई माइनस आई जी एस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किहदे इक्वल हुंदा, आई आर दी। आई किहदे इक्वल आ, जिन्ना उहदे विचों करंट पास हो रहा। ठीक है, रेजिस्टेंस असीं किहड़ी यूज कर रहे हैं, एस।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸ਼ੰਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੋਇਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ। ਜੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਅਗੇਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ V = IR। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ I ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, IG, ਔਰ R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੈਪੀਟਲ G। ਸੋ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ IgG। क्लियर होगी बच्चे आ चीज, IgG किस तरीके ना आया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड शंट रेजिस्टेंस, असी सिर्फ और सिर्फ शंट रेजिस्टेंस पता करना। सो S नु इधर ही पिया रहन दो, आ वाली टर्म इहदे पैर नीचे ले जाओ। सो कितना आ गया IgG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बच्चे ध्यान रखना IG, I दे पैर विच G आ, कैपिटल G इस तरीके ना है। सो दिस इज I दे पैर विच G माइनस, सॉरी I माइनस IG, I माइनस IG। सो इक्वेशन बिल्कुल केयरफुली लिखना, जो स्मॉल जी आ बच्चे ਉਹਦੇ पैर विच आ, सो पैर विच ही लिखना। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। साडा शंट रेजिस्टेंस का आंसर आ गया। S कैन बी कैलकुलेटेड, S उदों ही कैलकुलेटेड किया जा सकता है वैन S इज कनैक्टेड पैरेलल टू द गलवैनोमीटर, जो S नू गलवैनोमीटर दे पैरेलल जोड़ दिता जाएगा, एंड इट वर्क्स एज एन अमीटर। सो आ पूरा सिस्टम किद्दां दा काम करेगा, एक अमीटर की तरह ना, ठीक है जी। बच्चे इन्नी गल सब नू क्लीयर होगी तुहानू, ठीक है। हुण असीं पढ़दे हां कि शंट की हुंदा, तुहानू वीडियो राहीं दिखा दिता जाएगा कि शंट की चीज़ हुंदी आ। सो बच्चे ध्यान नाल डायग्राम चैक करो कि अगर तुहाडा एक इदां दा बॉक्स, बोथ आर नोन एज अ रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, जिन्हां दे विच इस तरह ना कीज़ लगियां हुंदियां, ओह रेजिस्टेंस बॉक्स है। पर देखो इहदे विच नंबर ऑफ कीज़ ज़्यादा आ, ठीक है। सो वैल्यू हुंदी आ 10, 50, 200, मतलब ये थाउजेंड्स तक जी 5000, 10,000, 20,000 कितने तक भी रीडिंग हो सकती है। जो वड्डे वाला रेजिस्टेंस बॉक्स आ, जो छोटे वाला रेजिस्टेंस बॉक्स आ वाला बच्चे दी मैक्सिमम वैल्यू 200 वोल्ट तक हो सकती, 200 ओम तक हो सकती, ठीक है। सो रेजिस्टेंस जी घट होंगी, तुसी देख भी सकते हैं कि आ वाला की है शंट। सो जिते रीडिंग्स घट होंगी उन्होंने असीं शंट रेजिस्टेंस बोल दिंदे आ। सो रीडिंग होंगी 10, ठीक है, 20, 30, 50, मैक्सीमम जी इधरले पासे इधरों हुण आपां नूं शो नहीं हो रही रीडिंग, मैक्सीमम 200 तक हो सकती है, ठीक है। सो जी हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है जिहदियां रेजिस्टेंस दी वैल्यू बच्चे 5000, 10,000 तक भी हो सकती है। क्लीयर हो गया। सो हुंदे रेजिस्टेंस बॉक्स ही आ, जिहदी रेजिस्टेंस लो हुंदी आ उहनूं असीं बोल दिंदे आ शंट रेजिस्टेंस, जिहदी हाई हुंदी आ उहनूं असीं सिंपल रेजिस्टेंस बॉक्स बोल दिंदे आ। क्लीयर हो गई इन्नी गल। सो नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर। सो असी इफेक्टिव रेजिस्टेंस पढ़न लगे अमीटर दी। अमीटर दी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी होएगी। पहली गल, अमीटर कदों बनेगा, जदों असी शंट और गलवैनोमीटर नूं पैरेलल दे विच जोड़िया, ठीक है जी। इहदा मतलब साडे कोल एक की सी गलवैनोमीटर और एक की सी शंट, ठीक है। दोनों नूं पैरेलल जोड़िया बच्चे, पैरेलल दा फॉर्मूला की हुंदा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 की जगह ते असीं की लिख रहे हैं गलवैनोमीटर, प्लस 1/r2 की जगह ते की लिख रहे हैं शंट, ठीक है जी। सो GS नीचे आ गया, ऊपर की आ जाएगा S प्लस G, डन। सो R नू रेसिप्रोकल करके लिख लो, वी गेट GS डिवाइडेड बाय S प्लस G, डन। बच्चे आ गया इत्थे तक आंसर, ठीक है। क्योंकि असी इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, सो असी इहदे पैर विच EFF पा दिता। EFF मीनस दिस शोज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, डन। सेकेंड चीज की आ, सिंस S इज वेरी ग्रेटर दैन S, इट मीनस कि गलवैनोमीटर की जो वैल्यू आ वो काफ़ी ज़्यादा वड्डी आ शंट रेजिस्टेंस दे नालों। शंट रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। सो असी की कीता, S नूं निगलैक्ट कर दिता, ठीक है जी। जो बच्चे S नूं निगलैक्ट करांगे, ऑलवेज याद रखो जो भी कोई चीज़ निगलैक्ट करते हैं हमेशा ही डिनोमीनेटर चों, नीचे वाली टर्म चों निगलैक्ट किया जाता है, कदे भी उपर वाली चीज़ विचों निगलैक्ट नहीं किया जाता। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो असी S नूं निगलैक्ट करना, सो आ वाले S नूं निगलैक्ट किया, जीरो नहीं पुट किया, निगलैक्ट मतलब छड्ड देना, ठीक है। सो G प्लस S जिहड़ा आ नियरली इक्वल किहदे आ जाएगा, G दे। सो असी की कीता, आ वाले S नूं छड्ड दिता। सो साडे को फाइनली की बच गया, GS डिवाइडेड बाय G, G दे नाल G कट्टिया गया। सो R इफेक्टिव दा आंसर कितना आ गया, S। सो
जिन्ना तुहाडा शंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा उन्ना ही तुहाडी इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिहड़ी मीटर दी आएगी। क्लीयर हो गया। द ज़ेनोमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। मीटर तुहाडा की है लो रेजिस्टेंस डिवाइस आ। सो resistance of an ideal emitter is 0। बच्चे आइडियल मीटर इज 0 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਅਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ। 0 मतलब ਨਿਗਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, हमेशा अमीटर नू जदों भी असी किते मैजर करना आ, कोई करंट मैजर करना आ, तो अमीटर नू ऑलवेज सीरीज दे विच लगाया जाता है। ठीक है, मान लो इत्थे तुहाडा बल्ब आ, ठीक है, तो अमीटर नू हमेशा ही सीरीज दे विच लगाया जाता। क्यों सीरीज दे विच लगाया जाता? क्योंकि लो रेजिस्टेंस डिवाइस आ। अगर लो रेजिस्टेंस डिवाइस आ, इहदा मतलब रेजिस्टेंस घट आ ते कंडक्टिविटी ज़्यादा आ, इहदा मतलब ये करंट नू ईजीली पास होण देगा बल्ब तक। क्लीयर होगी बच्चे इन्नी चीज़। सो समटाइम कई बार बच्चे 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई अमीटर इज कनैक्टेड ऑलवेज इन सीरीज, तो तुसी आंसर की देना कि इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस एंड इट हैज़ हाई कंडक्टिविटी ज़्यादा होने करके करंट नू ईजीली पास होण दिंदा है। नैक्सट देखो वोल्टमीटर की आ। हुण आपां गलवैनोमीटर नू वोल्टमीटर च कन्वर्ट करना सीखना है, तो पहला तो तुहानूं वोल्टमीटर पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर की चीज़ आ। वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मैजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। सानूं तो पता ही है कि वोल्टमीटर असीं यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मैजर करने के लिए, वी मैजर करने के लिए अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। देन गलवैनोमीटर इज कनैक्टेड इन सीरीज टू द कंडक्टर। असीं हुण की करना, गलवैनोमीटर लैना आ और एक गलवैनोमीटर लिता और एक वायर दे नाल उहनूं सीरीज दे विच कनैक्ट कर देना। अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू इट। एक बहुत वड्डी अमाउंट दे विच इत्थों असीं करंट आई पास कीता। एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डिक्रीजेस। सो क्योंकि हुण जिद्दां ही असीं इहदे विचों पास करांगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा आ ओह डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा वो हुण आपां फर्दर अगे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चे आ वी का मतलब की आ? वी मतलब वोल्टमीटर। इज इट वोल्टमीटर? नो, इट्स वोल्ट। ठीक है, वी मतलब वोल्टमीटर नहीं हुंदा, वी मतलब वोल्टमीटर नहीं हुंदा, ओहदे यूनिट्स आ वोल्ट। क्लीयर हो गई बच्चे आकर? चलो हुण असीं मेन आर्टिकल ते चलदे हां। द मेन आर्टिकल इज गलवैनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। सब तो पहला की करो बच्चे, एक गलवैनोमीटर लै लो, गलवैनोमीटर लिता और एक रेजिस्टेंस लिता। जो दोनों नू सीरीज दे विच लगावांगे तो इन्ने पोर्शन नू की बोल दिता जांदा आ? वोल्टमीटर। इन्ने पोर्शन नू वोल्टमीटर बोल दिता जांदा। सो असीं इहदे विचों कोई करंट पास कीता, सो किहड़ा करंट पास कीता? आई करंट। सो आई करंट उन्ना ही होएगा जिन्ना कि गलवैनोमीटर चों पास हो रहा। सो असीं बेसिकली लै रहे कि आई जी करंट आ। क्लीयर हो गया? करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल स्केल डिफ्लैक्शन दैट इज आई जी। सो रेंज ऑफ वोल्टमीटर मतलब जिहड़ी तुहाडा आ पूरी इहदी वोल्टमीटर दी जो रेंज आ दैट इज कैपिटल वी। दैन रेजिस्टेंस ऑफ कनैक्टेड इन सीरीज, जिहड़ा सी सीरीज दे विच रेजिस्टेंस जोड़िया दैट इज कैपिटल आर। सिंस आर इज कनैक्टेड इन सीरीज विद द गलवैनोमीटर, तो सानू दिखाई दे रहा कि असीं गलवैनोमीटर नू रेजिस्टेंस दे सीरीज दे विच लगाया। ठीक है, एक ही लाइन दे विच आ, एक ही लाइन दा मतलब सीरीज दे विच आ। The current through the galvanometer, now potential difference between the points is, हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, वोल्टमीटर तुहाडी वोल्टेज कितनी आएगी? वोल्टेज कितनी आएगी? पहला आ दोनों दी वैल्यू आएगी V इज इक्वल्स टू आई आर। इत्थे बच्चे आई कितना आ? आई जी, और आर दी जगह ते की आ? गलवैनोमीटर। सो आ गया आई जी जी, आई जी। सैकेंड टर्म हुण इहदी कढना है असीं V इज इक्वल्स टू आई आर। आई दी जगह ते की लिखांगे? अगेन जिन्ना करंट बच्चे पिछों आ रहा उन्ना ही करंट सीरीज दे विच करंट सेम रहिंदा आ। ठीक है, अगर आ आई जी है तो दिस इज ऑल्सो आई जी, इत्थे भी आई जी ही होएगा। ठीक है, सो असीं इन्ने क पोर्शन दे विच फाइंड आउट करना। सो करंट इज आई जी, आर दी जगह ते आर। सो आ गई सैकेंड टर्म आई जी आर। ठीक है, इनू अगे पिछे करके लिख सकते क्योंकि प्लस का साइन आ, चाहे आई जी पहला लिख लो, आई जी आर बाद विच लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा इदां। ठीक है जी। नाउ
टेक आई जी कॉमन, दोनों के विच आई जी आ रहा, सो असी कॉमन ले लिया, अंदर की रह गया आर प्लस जी। ठीक है जी, सो सैकेंड स्टैप आ गया साडा v इज इक्वल टू आई जी आर प्लस जी। हुण इत्थों की करना, आ वाला आई जी दे पैरां च लै गए, सो कितना आ गया आर प्लस जी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय आई जी। क्लीयर हो गया। जिद्दां असीं पिछे बचे शंट रजिस्टेंस फाइंड आउट कीता सी, इस केस दे विच असीं कल्ला आर फाइंड आउट करना आ। ठीक है, असीं इत्थे आर फाइंड आउट करना, सो आर कितना आ जाएगा, जी नूं दूसरी तरफ लै जाओ, माइनस आई जी आ जाएगा, आई माइनस जी आ जाएगा। सो आर दा आंसर कितना आ गया v डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सिमिलरली बच्चे असीं दा इफेक्टिव रेजिस्टेंस करना। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मीनस कि तुसीं उन्हां नूं किस तरीके नाल जोड़िया होया, दोनों नूं काहदे च जोड़िया होया, सीरीज़ दे विच। सीरीज़ दा फॉर्मूला की हुंदा है R1 प्लस R2। ठीक है, हुण R की जगह ते असीं की लिख रहे हैं R डैश। क्यों R डैश लिख रहे हैं, क्योंकि असीं आ वाली R ऑलरेडी यूज़ की हुई है, सो असीं कोई होर नाम देना है, असीं इनू तां असीं दे दित्ता R डैश। R1 की जगह ते की लवांगे G प्लस R2 की जगह ते की लवांगे R। सो दिस इज R डैश इज इक्वल टू G प्लस R या R प्लस G विच इज वेरी हाई, जिहदी वैल्यू बहुत हाई हुंदी है। वोल्टमीटर बच्चे हाई रजिस्टेंस डिवाइस है, इस करके इनू ऑलवेज पैरेलल जोड़िया जाता। ठीक है, जे बच्चे वोल्टमीटर नू डायरैक्ट तुसी सीरीज़ दे विच जोड़ दोगे, अच्छा इत्थे कन्फ्यूज नहीं हो जाना कि इत्थे तो ऑलरेडी सी सीरीज़ दे विच जोड़िया होया या फिर मैम उल्टा क्यों बोल रही आ। बच्चे ध्यान नाल ਕੰਨ खोल के गल सुनो, ਜਦੋਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਅਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਪਲਸ ਆਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਆ। ਹਾਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਆ ਤਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। गल क्लीयर होगी बच्चे, दो अलग अलग पॉइंट्स आ, डोंट कन्फ्यूज नहीं होना इस चीज़ से। गलवैनोमीटर नू कन्वर्ट करना होवे वोल्टमीटर दे विच तां रजिस्टेंस एंड गलवैनोमीटर नू सीरीज़ दे विच जोड़ना आ। अगर वोल्टमीटर तुसी किसी सर्किट दे विच यूज़ करना आ तां थानू वोल्टमीटर नू सर्किट दे अंदर पैरलल जोड़ना पएगा। इज दैट क्लीयर बच्चे? गल क्लीयर होगी। हुण तुसी आ पूरा अपना मेन डायग्राम देख लो, इस डायग्राम च किते भी वोल्टमीटर नहीं लग्या होया क्योंकि असीं इहनूं वोल्टमीटर बना रहे हां, गलवैनोमीटर की हैल्प दे नाल इस पूरे डिवाइस नूं असीं वोल्टमीटर बना रहे हां। ठीक है, पूरा आ वाला सिस्टम पूरा एक वोल्टमीटर बन गया। इहदा मतलब हुण वोल्टमीटर नूं अगर सर्किट च लगाना होवे तां तुहानूं सीरीज़ दे विच लगाना पएगा, पैरलल दे विच लगाना पएगा। गल क्लीयर होगी बच्चे? सो हाई रजिस्टेंस डिवाइस आ, इस करके इहनूं पैरलल जोड़दे आ। अगर मान लो तुसीं वोल्टमीटर नूं सीरीज़ दे विच लगाता, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हाई रजिस्टेंस डिवाइस आ, तो सारे दे सारी हाई रजिस्टेंस होने करके इन्हें करंट घट फ्लो होन देना। अगर करंट घट फ्लो होएगा तो तुहाडी जिहड़ा मेन सर्किट है उन्होंने करंट घट मिलेगा, पर असीं नहीं चाहते साडा जिहड़ी मेन वायर आ उन्होंने करंट घट मिले। सो असीं की करांगे, वोल्टमीटर नूं पैरलल लगा दिता। अगर पैरलल लगा दूंगे तो की हो जाएगा, तुहाडा जिहड़ा मेन सर्किट आ उन्होंने भी करंट हाफ इनू चला जाएगा, हाफ इनू चला जाएगा वोल्टमीटर नूं। सो तुहाडा रजिस्टेंस वाला काम, तुहाडी वायर काम भी कर रही है ते उत्थे नाल दी नाल तुहाडा वोल्टमीटर, तुहाडी वोल्टेज भी मैजर हो जाती है कि किन्नी वोल्टेज असीं अप्लाई कर रहे हैं। क्लीयर होगी बच्ची आ चीज़? सो आइडियल रजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इनफिनिटी। सो इहदी वोल्टमीटर दी जो रजिस्टेंस हुंदी है किन्नी हुंदी है? इनफिनिटी। अमीटर दी किन्नी सी बच्चे? आइडियल अमीटर दी रजिस्टेंस किन्नी सी? 0। वोल्टमीटर दी आइडियल रजिस्टेंस किन्नी हुंदी है? इनफिनिटी। कई बार 1 मार्क्स का अलग तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इहदे नाल ही कि राइट द रजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर एंड अमीटर, तो तुहानूं ये चीज़ां याद होनियां चाहिदियां। ठीक है जी बच्चे, कई बार अलग तो क्वेश्चन भी बन के आ जाता कि वाई वोल्टमीटर इज कनैक्टेड ऑलवेज इन पैरलल विद अ सर्किट दे नाल हमेशा पैरलल क्यों जोड़िया जाता है। सो तुहानूं बेसिक छोटे छोटे कॉन्सैप्ट क्लीयर होने चाहिए आ। सो इस पूरे आर्टिकल दे विच बच्चे तुहानूं किते भी कोई दिक्कत आई होवे, कुछ ना समझ लग्या होवे तां तुसीं पुछ सकदे आ। थैंक यू सो मच।